फेयर, लेसिस फेयर मीन्स फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब लेसिस फेयर स्टेट का मतलब होता है यहां जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किस पर हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेंगी। किस पर? डिमांड एंड सप्लाई पर। स्टेट का इंटरवेंशन क्या होगा? बहुत मिनिमम होगा, मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। यहां गवर्नमेंट will play the role of facilitator and regulator. Government will play the role of facilitator to facilitate the economic activities or the businessmen and to regulate them, just like regulations on trade unions. ठीक है, regulations of over exploitation, तो रिसोर्सेज का अलोकेशन क्या हो, प्रॉपर हो, और प्रोडक्शन क्या हो, अकॉर्डिंग टू द डीम्स डिमांड हो। क्लियर? लेसिस फेयर कहते हैं इसको, फॉर्मूला को। मीनिंग और ओरिजिन क्या है इसका देखिए। द टर्म लेसिस फेयर इज ए फ्रेंच फ्रेज मीनिंग टू लेट डू और लेट पीपल एक्ट। लेट पीपल एक्ट मीन्स कंज्यूमर, people means the consumer. If people wants to start a business, let them start a business. If people wants to be a consumer, let the people be a consumer. Let do whatever you want to do, produce with certain limits, like government will decide in the form of regulator the what we are going to be regulate, हमें क्या रेगुलेट करना है, क्या फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेशन का एग्जांपल है हमारे यहाँ सब्सिडीज टू द कॉर्पोरेट्स इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ महिंद्रा सेज रिको, वेर यू आर गोइंग टू बाई ए लैंड एंड establish a industry or a factory. It means if you are going in that particular economic zone, the electricity rebate, taxation rebate, land tax will be subsidized on the basis of the area. Clear है? फिर बात करते हैं, इट implies minimum stage interference in economic and social life of individual. Social life means if a consumer going to buy something, let them buy something. You do not need to regulate the consumer. You are not be authorized to buy this. You are authorized to buy anything. It is just like open economy. If I choose to buy a iPhone, I will. Okay, if I choose to buy a Mercedes, I will. Should rather than it should going to be imported or it is manufactured within the territory. But if I want to consume the burger of a McD, I will, means let people act. उन्हें act करने दो. Whatever they want to consume, let them consume. Clear? तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहां फैसिलिटेटर और रेगुलेटर रहेगी. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ओनर ऑफ any kind of industry or business in this particular scenario. Let them do whatever they want to do. Clear? Originated in 18th century in Europe, especially France and Britain, because they are capitalist economy. Capitalism means use the resources and let them transfer in the production, and consumers are going to be consumed whatever they are producing. The production is always going to be sold on the basis of how much it is my pocket friendly. If the goods I am purchasing is pocket friendly in the MRP scenarios, then I will going to consume that. Clear? Second, the quality of good. If the quality of a particular good, just like I am going to purchase Nike shoes, because I know the durability of that shoes is better than Bata and other company. It is just kind of a assumption, but I am making my decision. Let me go to the market and let me buy Nike shoes, because as it is going to be promoted, the durability of Nike shoes is higher than any other brand. Quality of goods, pocket friendly. Clear?
लाइक कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यूरिंग द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप in 18th century, the industrialization has been introduced in Europe when the merchants came to India and they started to establish factories and made us as a consumer. हमें क्या बना दिया उन्होंने? कंज्यूमर बना दिया. Now key idea, the state should act as policeman state. Policeman state का means regulator. If a company is exploiting the resources are two type: physical resources and physical means natural resources and human resources. If a person who is doing his duties in a company is going to be exploited by overwork, overtime, then the human resources is going to be exploited. The mental pressure and physical pressure is going to be applied over the consumer, over the man who is working there. So who will going to take decisions over that? Government, policeman state, facilitator. Like if a company going to be buy resources, then who will provide the resources? Government will provide the resources for raw material to make final consumption. This is the reason government is playing role of regulator and facilitator. A term included in this is facilitator. Regulator in overconsumption, overexploitation. Clear? And facilitator means facilitate the consumer and facilitate the producer. Now, philosophical foundation क्या है इसका भाई? The concept is rooted in the classical liberalism. Liberalism, what liberalism? Government is not having the all of the stakes in production. Just like BSNL, took place. Nationalization of different industries took place in the duration of Indira Gandhi. What government was going to be owner? क्या बन रही थी सरकार? मालिक बन रही थी. We know the corruption is in the government, administration, authority. Everyone is somewhere. Everyone is going to be included in that particular scenarios of corruption. Now, if there is a negative aspect which is known as corruption is happening in the economic activities under the government, means public sector is making insufficient. BSNL was going towards insufficiency. You know the quality of Jio and BSNL. If we are going to compare the quality of Jio and BSNL in service sector, which one is better? Jio is better or BSNL is better? Jio is better. Quality of services are going to be provided to the citizens or the people who are consuming the services. BSNL is not doing the same, but BSNL is in this market just because if there any kind of exploitation took place over valued recharge, अगर रिचार्ज की प्राइस 500 पार कर जाए तो क्या होगा? कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, ओवरबर्डन होगा कंज्यूमर पर. तो गवर्नमेंट क्या करती है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वहां बैठेगी. फिर क्या होगा कि भाई बीएसएनएल बैठा है तो हम इतना प्राइस नहीं रख सकते, हम गवर्नमेंट कंपनी है, वो रेगुलेट करेगी. क्लियर? द डिसीजन इज ऑन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज. दिस इज जस्ट लाइक सेम रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर. फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है भाई इसका? द कॉन्सेप्ट इज रूटेड इन क्लासिकल लिबरलिज्म. लिबरलिज्म अभी बात करते हैं जैसे कि सारी कंपनियां अगर सरकार ओन करती है तो प्राइवेट्स के पास कुछ नहीं. उदारवाद क्या कहता है? इनको भी करने दो, लेट देम डू. भाई यू आर हैविंग ऑल द स्टेक्स, आप ही आप मार्केट में क्यों है? प्राइवेट्स को भी आने दो. अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मुझे भी करने दो. आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग. तो क्या हुआ? लिबरलिज्म. सरकार अकेली नहीं, हम भी हैं. तो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो? हम भी हैं. इसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सरकार और प्राइवेट ओनर्स क्या कर रहे हैं? साथ काम कर रहे हैं. क्लियर?
मेजर थिंकर्स के बारे में बात करें, जॉन लॉक, वेल नोन फिगर। स्टेट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल एसेट, लिबर्टी, यू आर गोइंग टू बाई नाइकी शूज, इट्स योर लिबर्टी, मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं मैं खरीदूं, लिबर्टी है। एग्जैक्टली लाइफ, लाइफ में एक फंडामेंटल है बेटर लाइवलीहुड। आई वॉन्ट टू कंज्यूम द क्वालिटी ऑफ फूड, so I just want rich nutrition. If the domestic market is not providing me rich nutrition, I will going to consume the rich nutrition from somewhere else, but because I want to consume. So right to life is having included right, which is right to better nutrition. न्यूट्रिशन आपका अधिकार है, आप जरूरी नहीं सरकार जो कह रही वही खाओ, कुछ भी खा सकते हो, फ्रीडम है। क्लियर। Any excessive state power threatened individual freedom. If government is going to be authoritarianism or authoritative, it is just like government is having supreme power to produce anything, then the sovereignty of consumer is going to be breached. आपकी स्वतंत्र संप्रभुता क्या हो जाएगी, खतरे में चली जाएगी, क्योंकि आपको सरकार जो देगी वही खाना पड़ेगा। ये हमारे लिए कब था, क्लोज्ड इकोनॉमी 1991 से पहले। वी वर नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ इंपोर्ट्स इन द कंट्री, देयर वाज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गुड्स। नाउ ओपन हुए तो क्या हुआ, सॉवरेनिटी आई कंज्यूमर की। अब कंज्यूमर को सैमसंग चाहिए तो आएगा, कंज्यूमर को आईफोन चाहिए आएगा, आईफोन प्लस अल्ट्रा प्रो मैक्स चाहिए वो भी आएगा, सब चाहिए कंज्यूमर को। कंज्यूमर व्हाट एवर कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम, ही और शी विल गेट दैट। क्लियर। Let's move forward. Adam Smith. Adam Smith. What Adam Smith? Adam Smith is the father of capitalist economy. ठीक है, कैपिटलिज्म के फादर कौन है, एडम स्मिथ। और उनकी बुक क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ही एडवोकेटेड, क्या एडवोकेट किया उन्होंने, फ्री मार्केट। बोले मार्केट पे क्या नहीं होनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। लेट द डिमांड satisfy what, supply, and let the supply satisfy the demand. Invisible hand guided economic activities, and these are those invisible hands, demand and supply. Let the people demand, we will supply. स्टेट रोल लिमिटेड टू, स्टेट कहाँ लिमिटेड है, डिफेंस में। सरकार के हाथ में क्या है, सिर्फ डिफेंस है पहली बात तो, क्योंकि अगर वो भी प्राइवेट हाथों में चला गया तो वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे डिफेंस को। फिर दूसरा जस्टिस, अगर जस्टिस प्राइवेट हाथों में चला जाए, सोचो अंबानी जी कोर्ट लगा रहे हैं, अडानी जी कोर्ट लगा रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है वो खुद के किसी ऑफेंसिव या फिर किसी क्राइम के लिए खुद को सजा देंगे, नहीं देंगे। तो लेट द जुडिशरी बी फ्री। फिर पब्लिक वर्क्स दैट प्राइवेट इंडिविजुअल कैन नॉट अंडरटेक प्रॉफिटेबल, कैसे नहीं कर सकते पब्लिक, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि सैनिटेशन, जैसे कि रिसोर्सेज का लोकेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। पब्लिक वर्क्स, सरकार अगर स्कीम नहीं बनाए वेलफेयर की, प्राइवेट बनाए, तो क्या तुम्हें लगता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, नहीं होंगी। गवर्नमेंट की नजरों में सब समान है। क्लियर। प्राइवेट क्या चाहता है, प्रॉफिट, सिर्फ उसको चाहिए प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदा। और सरकार को क्या चाहिए, लोगों की बेसिक नीड क्या रहे, सेटिस्फाई रहे, लोगों का लाइवलीहुड क्या रहे, सही रहे। फिर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, बिलीव्ड इन सोशल डॉर्निज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट मीन्स लेट द इकोनॉमी डू, who will survive, survival means competition, who is going to be produce the quality of goods in price friendly manner is going to be survive.
क्लियर? स्टेट हेल्प्स टू द पुअर, इंटरफेयर विद नेचुरल सोशल इवोल्यूशन। किसकी मदद करती है सरकार? पुअर की करती है, इंटरफेयर करती है ना, कि भाई इसको क्या मिले और इसका लाइवलीहुड बेटर हो, ये अच्छा कंज्यूम कर पाए, ये अच्छा रह पाए, इसके यहाँ सैनिटेशन की फैसिलिटी हो, टैप वाटर हो, बेसिक एमिनिटीज क्या हो इसके यहाँ अवेलेबल हो, एंड विद नेचुरल सोशल इवोल्यूशन। नेचुरल सोशल इवोल्यूशन मतलब जो नेचुरल सोसाइटी की नीड्स हैं वो क्या रहे, फुलफिल होती रहे। क्लियर है? ये गवर्नमेंट का काम है। सोचो प्राइवेट नहीं कर सकती ना सोशल एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन, कि भाई योगी क्या नाम है, अडानी जी स्कीम चला रहे हैं, मैं हर घर में सैनिटेशन की फैसिलिटी अवेल करवाऊंगा, हर घर को बाथरूम नेट बाथ बनवा के दूंगा। करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। अगर करवाते हैं तो डेटा, तुम्हारा डेटा उनके पास जाएगा, डेटा प्राइवेसी। क्लियर? फीचर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिमल गवर्नमेंट, सरकार का इंटरवेंशन कम रहे, तभी तो एफडीआई आएगा। बाहर से कंपनियां कब आएंगी? जब रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी, डॉक्यूमेंटेशन इजी होगा, जब सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाएं। एक आदमी आया, उसने कहा मुझे फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, उससे सरकार ने कहा ठीक है, पटवारी से पहले पट्टा लेके आओ, उससे रजिस्ट्री करवाओ, फिर सेक्रेटरी से साइन करवाओ, फिर उसके बाद आपको जमीन अलॉट हो जाएगी। बोले मुझे जमीन के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी का वो भी चाहिए। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में चले जाना, वहां से हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। वो मैं थोड़ा सा पॉल्यूशन फैलाऊंगा, हाँ उसके लिए आप एनजीटी जाओ, वहां से बात करके आओ, ठीक है। बोले ओके। बोले अब क्या रह गया? बोले कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए कि मैं 3 फ्लोर से ज्यादा बनाऊंगा। तो बोले वो फिर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाओ, वहां से साइन। वो कहेगा अरे यार छोड़ो, मैं मेरे यहीं सही हूँ, ठीक है। अब क्या किया जाए? बोले कि सिंगल विंडो दे दो इनको, एक ही जगह जाओ, उद्यम पोर्टल पे जाओ, साइन करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, सारे क्लियरेंस एक ही बार में लो, खत्म करो, उसका एक प्रिंट निकालो और अपने ऑफिस में चिपका दो। क्लियर हो गया? उसमें आदमी कौन करेगा यार इतना सब कुछ, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद भी वो सब कुछ ले ले, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद एसडीएम साहब आ रहे, आपने फैक्ट्री लगाई है, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, उनको चाय पिलाओ। बोले आपके इसकी तो 1 साल की लिमिट थी, तो खत्म हो गई है, टाइम अभी क्यों नहीं है? एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, लाइसेंस राज, उस सबको खत्म कर। वो आदमी एंड में फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे यहाँ प्रोडक्शन करना ही नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, अगर इनको इंपोर्ट करना होगा कर लेंगे, इतनी टेंशन क्यों पालू? क्लियर? दिस इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो लेट द मिनिमल गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड विद इन द लेजिस्लेचर फॉर्मूला। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज स्कार्ड, कम है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअलिज्म ओवर कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म है मतलब क्या कह रहा है लेजिस्लेचर फॉर्मूला, कि कलेक्टिविज्म मतलब गवर्नमेंट और इंडिविजुअलिज्म मतलब कोई प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। फिर नो स्टेट वेलफेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या? नो स्टेट वेलफेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेट की वेलफेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लिमिटेड टैक्सेशन होना चाहिए ताकि एफडीआई आए, लोग लगे। फ्री मार्केट, फ्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर चाहें कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्रीडम है हमें, तो हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उनको क्या दिया जाए? बेसिकली फ्रीडम एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि लो डॉक्यूमेंटेशन कराओ, फ्रीडम है तुम्हें, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कर करा के प्रोडक्शन करो तुम भाई फटाफट फटाफट। क्लियर? स्टेट फंक्शन आर रिस्ट्रिक्टेड टू लॉ एंड ऑर्डर। पता लगा जो वर्कर्स हैं वो धरने पे बैठ गए हैं, बोले भाई क्यों? बोले सैलरी बढ़ाओ, बोले बिना मतलब ही, उनको रोको। क्लियर? या फिर
वर्कर से ज्यादा काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो वर्कर्स क्या कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे, रेगुलेशंस लाओ, लॉ एंड ऑर्डर क्या करो, मेंटेन करो। फिर नेशनल डिफेंस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। नेशनल डिफेंस का मुद्दा किसके हाथ में, सिर्फ सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन रखो भाई। बोले कि लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिले, सजा मिले, और सही कर रहे हैं तो उन्हें न्याय मिले, मिले कि नहीं। मेरिट ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट, मेरिट क्या है भाई, मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब कहां से आ गया, ये रहा और ये रहा। इंडिविजुअल एंजॉय फ्रीडम इन इकोनॉमिक एंड पर्सनल लाइफ, he or she is going to be produce something, let them produce, do not put some kind of bindation and restrictions over the producer, clear है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें, कंपटीशन प्रमोट्स इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। कंपटीशन मतलब अडानी जी एक ट्रेन, अदानी जी चला रहे हैं, एक ट्रेन अंबानी जी चला रहे हैं। अब कंपटीशन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर मेरी में बैठे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सर्विसेज अच्छी रखनी पड़ेंगी। कंपटीशन को प्रमोट कैसे कर सकते हो, इनोवेशन से। बोले आपके घर से बैग उठेगा, आपकी रेलवे में सीट के नीचे चला जाएगा, आपको बस आके बैठना है। हाँ ये सही है, कैब आ जाएगी आपके यहाँ पे, जब आपका टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पहुंचा देगी। इससे क्या होगा, 1 घंटे पहले जाके रेलवे स्टेशन नहीं बैठना पड़ेगा। जब पापा को ट्रेन में जाना है तो पापा कहेंगे 2 घंटे पहले चलते, बैठ रहेंगे क्या कर रहे हैं, मेरे को सुबह छोड़ देना। तब क्या करना है, कैब आ जाएगी, अडानी जी कैब भिजवा देंगे कि आपकी ट्रेन है 2 बजे की, आपको कैब आ जाएगी लेने के लिए, ठीक है। कंपटीशन इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को क्या करता है भाई, प्रमोट करता है। और क्या करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट एब्यूज, बता रहा था अभी मैं। इंटरवेंशन कैसे होता है, लाइसेंस, एसडीएम साहब आ गए, ये क्या है, अब्यूज कहते हैं इसको, परेशान कर रहे हो भाई तुम उनको। बोले क्या करें, रिड्यूस चांसेस ऑफ अथॉरिटेरिज्म। बोले नहीं नहीं नहीं, सबर रखो, हमें कर लें दो भाई। एनकरेज सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मीन्स हम सफिशिएंट हैं, वी विल डू। सिटीजन डिपेंड्स ऑन देयर ओन एबिलिटीज, कि मेरे को, मैं चाहता हूं, मुझे क्या करना है भाई, बिजनेस करना है, या फिर मैं सिर्फ कंज्यूमर बनना चाहता हूं, या फिर मैं कहीं क्या करना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट चाहता हूं। अगर मान लो प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं कंट्री में, तो सब कहां भागेंगे, सरकारी नौकरी की तरफ, नहीं भागेंगे। जब मान लो हर जगह सरकारी, तो सब सरकारी नौकरी में भागेंगे, और जब सरकारी नौकरी में भागेंगे तो जाने कितने बेरोजगार रहेंगे, क्लियर। डिमेरिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट, सबसे बड़ी इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कैसे भाई, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। ऑप्शंस नहीं है उसके पास, गरीब के पास कहाँ बिजनेस खोलने का ऑप्शन, वो तो एग्रीकल्चर में बिजी है। और जिसको पता है कि इस गरीब को खाना देना है, 2 वक्त की रोटी देनी है ना, वो क्या करे भाई, इनको महंगे प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। तो फिर धोने के लिए पानी नहीं है, गरीबी है। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, मैं बता रहा था ज्यादा काम करवाएंगे उनसे, क्योंकि मान लो 10% लोग हैं जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10% लोग अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 90% पॉपुलेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो गाड़ियां मांग रहे हैं लोग, ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, गाड़ियां चाहिए। मान लेते हैं 10% लोग ही गाड़ियां बना रहे हैं, 40% लोगों को गाड़ियां चाहिए, तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी सेटिस्फाई होगा। और प्रोडक्शन करेगा कौन, वो लेबर करवाएगी, तो लेबर को क्या किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कि भाई 9 घंटे से काम नहीं होगा, 12 घंटे कर, क्लियर। सेटिस्फाई करनी है डिमांड, तो नो रेगुलेशंस ऑफ वेजेस, आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस, मतलब काम कर, अपन को नहीं चाहिए कुछ। सोशल इनजस्टिस, एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी लीड्स टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई 2 दिन की छुट्टी पे था, निकाल दिया नौकरी से, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर पॉवर्टी आ गई, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बोली इसको तो कुछ काम करना ही नहीं आता,
फिर एक पार्ट वो हो जाएगा जो उसको कहेगा क्या यार, क्या का आदमी है, कोई काम ही नहीं आता तेरे को। सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। डिप्राइव्ड इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज डिप्राइव्ड, डिस्क्रिमिनेशन विल बी ऑन पीक ऑन इकोनॉमिक बेसिस। मोनोपोलीज हो जाएंगी मार्केट में। मान लो मेरे हाथ में अच्छे रिसोर्स लग गए, मैं हूं क्या, पीटर इंग्लैंड, मेरे हाथ अच्छे रिसोर्सेज लग गए, और अगर मेरे हाथ अच्छे रिसोर्सेज लग गए तो फिर मैं बाकी मार्केट में किसी को आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, मोनोपोली हो जाएगी मेरी। और मोनोपोली क्या करेगी, लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी। फ्री मार्केट में लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मोनोपोली हो जाएगी। कोई चार लोग मिलके ही चार इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, दादा बन गए वो, बोले हमसे ही खरीद पाओगे और तो है ही कौन तुम्हारे पास ऑप्शन। जैसे कि एग्जाम्पल, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, जैसे कि एग्जाम्पल एलन मस्क, टेस्ला। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, उसने एक पूरा इलीट क्लास बना दी, समझ रहे हो, उसने एक इलीट क्लास बना दी जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की क्लास है। इसका एग्जाम्पल कहां देखने को मिलता है, आज जब कोई समिट होता है तो बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। तो इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का कुछ पार्ट है, कुछ 200-300 लोग हैं जिनके हाथ में क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ है, वही पूरा ग्लोबल ऑर्डर डिसाइड करके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके हाथ क्या लग गए हैं, रिसोर्सेज लग गए हैं, प्रोडक्शन लग गया है, और इस पूरी पॉपुलेशन को क्या लग गई, कंजम्पशन की आदत लग गई है, समझ रहे हो। तो उनको पता है ये क्या है, अपने लिए पैसा है, इनको पहनाओ कपड़े, इनको खाना अच्छा दो, बोले नहीं है पिज्जा हट, पिज्जा हट खोलो, ये जाता हुआ देखेगा तो अंदर आएगा, किसी दिन तो आएगा, और जब आएगा तो इसको चटकारा लगेगा, फिर ये बार बार आएगा। तो लोगों को कंजम्पशन के लिए क्या बना दो, आदती बना दो, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, चाइल्ड लेबर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड अनसेफ फैक्ट्रीज, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है भाई, उनको क्या है, ये कंज्यूमर है, ये डिमांड कर रहा है। मान लो मैं गया, मेरे को बर्गर खाना है, ठीक है, अगर 15 मिनट में नहीं मिला तो उठ के चला जाऊंगा ना, तो कहेगा मैं सो रहा हूँ, बोले उठ, कंज्यूमर आया उसके लिए बना भाई, फटाफट फटाफट चला जाएगा। एक्सप्लॉइटेशन है ना, उसकी स्लीपिंग साइकिल तोड़ दी गई। उसका एग्जाम्पल और दूसरा, गिग वर्कर्स, ये स्विगी जोमेटो, रात भर घूमते हैं, नींद गायब है ना, चैन वैन सब उजड़ा है इनका, रात भर भागते हैं। क्यों, अभी नया डिसीजन दिया है कोर्ट ने कि ये क्या होता है 10 मिनट में डिलीवरी, अगर मान लो 10 मिनट में किसी गुड्स की डिलीवरी करनी है किसी कंज्यूमर को, तो फिर आप कितनी स्पीड से जाओगे, इसमें आपकी लाइफ का रिस्क नहीं है। कहां से आया एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, 10 मिनट में पहुंच जाओ उसके घर के बाद, टेन लीजिए कंज्यूमर, क्लियर है। एक्सप्लॉइटेशन है ना उस लेबर का। ब्लिंकिट अब सिर्फ 10 मिनट में आपके घर, और 10 मिनट में आ रहा है, छिला छिलाए, और हम क्या कहते हैं, भैया लेट आए हो, पिज्जा की डिलीवरी इतनी देर में हो जाएगा, इतनी देर के बाद आया, हम छुपे रहे, हम बाहर निकले, हमने कहा भैया ठप्पा, आप तो लेट आए हैं। हमें एक्सप्लॉइट करना भी आ गया है, उनको आ गया है, तो क्लियर। फिर बात करते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर, तो समझ में आ गया। अनसेफ फैक्ट्रीज, अनसेफ फैक्ट्रीज का मतलब वो फैक्ट्री जो कभी गिर जाएंगी, जहां ब्लास्ट हो जाएगा, जहां सेफ्टी मेजर्स नहीं है, क्लियर है, वहां उस लेबर की क्या चल जाएगी, जान चल जाएगी बेचारे की, अनसेफ है। फिर डिक्लाइन ऑफ लेस फेयर स्टेट, कैसे भाई, ग्रेट डिप्रेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, और तब हम किसकी तरफ भागे, सोशलिज्म की तरफ, रशिया की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ, बोले ये देखो जिंदा है। क्यों, मार्केट फेलियर लेड टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन पे ही है तो सिक्योरिटी नहीं है ना, किसी दिन अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो गई तो नौकरियां भी गई। ये डिप्रेशन ने क्या कर दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट ला दिया, और उस अनएम्प्लॉयमेंट ने काफी लाइफ्स को क्या किया, इफेक्ट किया, ठीक है। राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड सोशलिस्ट आइडियाज, सोशलिस्ट आइडियाज चालू हुए व्लादिमीर लेनिन से,
ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, इसलिए हमें एक हिस्ट्री में देखने को मिलता है, एक पहले था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर हमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिज्म हमने देखना चालू कर दिया था। क्लियर है? स्टेट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी, क्योंकि भाई अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कोई तो प्रोटेक्ट करे हमें। ठीक है, और हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। हमारे प्रोटेक्शन के लिए कौन बैठी भाई? गवर्नमेंट ही तो बैठी है। फिर बात करते हैं कंक्लूजन क्या है भाई इसका। द लेजिस्लेचर स्टेट फेल टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। दूसरा, सोशल जस्टिस नहीं मिल सकता इस चीज से। अगर आप इकोनॉमिकली भी रिच हो गए हैं तो सोशली रिच कैसे होंगे भाई? डिप्राइव्ड क्लास है और एक अपर कास्ट है और एक डिप्राइव्ड कास्ट है, क्या हो सकता है कि अगर उसके पास पैसे ज्यादा है तो वो उसको सही ट्रीट करेगा? नहीं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपनी जगह, सोशल कोऑपरेशन अपनी जगह है। अगर कोई आदमी एससी से बिलोंग करता है, उसके हेल्प के लिए अगर कोई अपर कास्ट जनरल का आदमी आके सपोर्ट करे, म्यूचुअल कोऑपरेट करे उससे, उससे सोसाइटी उसको कहे कि भाई हाँ हाँ मैं, तो लगेगा ना कि हाँ इक्वलिटी है, फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी धीरे धीरे। तो इक्वलिटी सोशल पैरामीटर पे भी होनी चाहिए, यहाँ वो नहीं होती है। क्लियर?